Very good morning, dear students. Today we are starting the lesson of second of DP of class 9th. This is NTSC related lesson. Means question will come. This part is in syllabus of NTSC, and questions can come from this lesson. So I am revising today the complete lesson number 2, and in the next class we will revise lesson number 1 of class 9th DP book. So this lesson is all about democracy. Although you people know many of the facts, but just today we are revising the complete lesson. Okay, have a look in it. And in this lesson what we are going to revise, let me clear you. We will see about the various features of democracy. We will see about the meaning, derivation of the word democracy. Then we will see and understand the various features of democracy with the help of various case studies. Okay, like the case study of Pakistan, then case study of China, Mexico, Saudi Arabia, Indonesia, Fiji, Robert Mugabe. All these briefly we will see again. Okay, and then we will see about the features of democracy in summary form, advantages and disadvantages of democracy, and what is the broader meaning of democracy. These all things we will see in detail. So this is a revision class video. Things will be not in too much detail like always it used to be. So briefly I will tell, because today we have to complete this lesson. In the next class we will start. So briefly I will tell everything about the topic. And as you have studied this, and this is very easy lesson, hope you will get all the things. So students, let's start. In this part, what we first of all, it should be clear to you that democracy is derived from Greek words demos and kratia या फिर kratos. Okay, so demos means people and kratia kratos means rule. Okay, so people, to rule people is the meaning of democracy, and it is derived from Greek word demos and kratia or kratos. Okay, now this is clear to you about derivation about the derivation of democracy word. Now what is, we will see about the meaning of democracy. What is democracy? So democracy is the form of government in which rulers are elected by the people. Means in which ultimately the decision powers is in the hands of people, or we can also say about this, the democracy is of the people, for the people, by the people, as the definition given by Abraham Lincoln. Now we will see different features of democracy with the help of case study. Like firstly, if we talk about the first feature, main decision by elected leaders. In this means जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो पब्लिक ने इलेक्ट किए हैं, उन्हीं को क्या करना चाहिए, मेनली डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करना चाहिए, उन्हीं के थ्रू डिसीजंस ली जानी चाहिए. अब इसको हम देखेंगे किसमें, किसके केस स्टडी में, पाकिस्तान में जो केस हुआ उसके अकॉर्डिंग हम इसको अब डिटेल में देखते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ क्या हुआ था, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, एक मिलिट्री को लीड करते थे, मिलिट्री कॉप को, ग्रुप को, कब, अक्टूबर 1999 में. और उनको क्या कर दिया जाता है, ओवरथ्रू कर दिया जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट. उन्होंने क्या किया, ओवरथ्रू कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और अपने आप को क्या कर दिया, वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. नाउ इसके बाद क्या किया है उन्होंने, वो मिलिट्री कॉप को लीड करते थे जनरल मुशर्रफ अक्टूबर 1919 में, और उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एंड ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. और इसके बाद क्या होता है, अपने डेजिग्नेशन, अपनी पोजीशन उन्होंने चेंज कर ली एज प्रेसिडेंट, एंड इन 2002 एक रेफरेंडम के थ्रू द कंट्री ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन. क्या हो गया, सबसे पहले क्या करते हैं, मिलिट्री कॉप के हेड थे. ओके, उसके बाद में क्या कर लेते हैं, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लेते हैं, पोजीशन उनको चेंज होके मिल जाती है, प्रेसिडेंट चेंज हो जाती है, और 5 years का रेफरेंडम के थ्रू एक्सटेंशन भी मिल जाता है.
अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें एक पूरी कमेटी से या पूरे इलेक्टोरेट से या पूरे ग्रुप ऑफ मेंबर्स से ये पूछा जाता है जो उस कमेटी में, ग्रुप में, इलेक्टोरेट में है कि भाई इस प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। और प्रपोजल क्या होता है? वो डायरेक्ट वोट होता है, सीधा पूछ लिया जाता है। प्रपोजल किससे रिलेटेड होता है? किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी नए लॉ के फॉर्मेशन से हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड होता है। डायरेक्टली पूछा जाता है ग्रुप मेंबर से, भाई इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। तो जो मेंबर्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो किया जाता है। तो ऐसे ही रेफरेंडम के थ्रू इनको क्या बना दिया गया था? 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिल गया था, किसमें? प्रेसिडेंटशिप में। और पाकिस्तानी जो मीडिया था, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो रेफरेंडम था वो किस पे? मैल प्रैक्टिसेस पे, फ्रॉड पे, यानी घपलेबाजी वाला सिस्टम था, इस पर बेस था सारा। और अगस्त 2002 में ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब प्रेसिडेंटशिप मिल गई है, एक्सटेंशन मिल गया, इसके बाद अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करता है जनरल परवेज मुशर्रफ। और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता था? उसने क्या कर दिया था? उसने अमेंड कर दिया था, चेंजेस कर दिए थे, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। अब एज पर दिस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशूड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ, वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता था? नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता था, यानी जो भी वहां पर असेंबलीज थी, लेजिस्लेटिव या प्रोविंशियल नेशनल असेंबलीज, उनको डिसमिस कर सकता था कभी भी। और इसके बाद जो उनका जो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? एक सुपरवाइज करना शुरू कर दिया, किसको? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसमें ज्यादातर लोग जो थे, डोमिनेट जो कर रहे थे, वो मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे थे। इवन टुडे आल्सो ये कहने की बात है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन काफी अभी भी काफी हद तक कंट्रोल वहां पर मिलिट्री पावर्स का है। और इस लॉ के पास होने के बाद जो इलेक्शंस हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, लेकिन फिर भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके पास कुछ ही पावर्स थी। ऑल पावर्स वर नॉट गिवन टू देम। फाइनल जो पावर्स थी, अल्टीमेट जो पावर्स थी, वो वहां पर मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो इस हमें केस स्टडी से ये समझ में आया कि इस कंट्री को हम कंप्लीटली डेमोक्रेसी कंट्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? मेन डिसीजंस और मेन पावर्स और मेन डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है, ना कि लोगों के पास है, लोगों के हाथ में है। दिस इज द केस स्टडी व्हिच शोज दैट पाकिस्तान कैन नॉट बी सेड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज द पावर्स वर ultimately in the hands of military and General Pervez Musharraf, not in the hands of elected leaders। जनता के थ्रू इलेक्ट नहीं हुआ लीडर, और फिर पावर्स भी उसके पास ही है। तो पावर्स होनी चाहिए किसके पास में? एक या तो जनता के पास, या फिर डिसीजन मेकिंग पावर्स, चूंकि अगर बात करें तो वो इलेक्टेड लीडर्स के पास होनी चाहिए। देन ओनली द कंट्री विल बी सेड एज डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड केस स्टडी, दैट इज the second feature, that is free and fair electoral competition. Now in this case we will see the case of China and we will see the case study of Mexico. तो चाइना में क्या हो रहा है? देखो, हर साल वहाँ पर every 5 years elections used to take place and the National People's Congress जो है वहाँ पर पार्लियामेंट है, वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं and National People Congress has to appoint the president of the country. अब इनको क्या, नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्लियामेंट जो है, इनको क्या करना पड़ता है? प्रेसिडेंट कंट्री का इलेक्ट करना पड़ता है। एंड नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम ऑल चाइना। 3000 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है पूरे चाइना से। कुछ मेंबर्स वहाँ पर आर्मी के भी होते हैं, आर इलेक्टेड बाय द आर्मी के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। और बिफोर कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस, बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस, तो कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड जिनको अप्रूवल मिलता है, या फिर ओनली दोज वर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिटी पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it are allowed to contest elections in 2023। अब ध्यान से समझिए वहाँ पर क्या हो रहा है। जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है मेंबर्स को अगर कंटेस्ट करना है इलेक्शंस में।
और इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वहाँ पर किसके, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या 8 स्मॉल अदर जो वहाँ इस तरह की पार्टी है, उन्हीं को क्या किया गया 2002 और 3 में पार्टिसिपेट करने दिया इलेक्शंस में। और गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी बनती है हर साल, कम्युनिस्ट पार्टी की, मतलब सिंगल पार्टी वहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल पार्टी है, चॉइस नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो ये क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है ही नहीं। पता ही है हमेशा इस पार्टी के ही मेंबर्स, मतलब डोमिनेशन एक सिंगल पार्टी का है वहाँ पर। तो ये क्या है, कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री हम इसको नहीं बोलेंगे इस वजह से। तो हम अब नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं, वो भी इसी तरह का है, मैक्सिको से रिलेटेड है। वहाँ इलेक्शंस यूज्ड टू हेल्ड इन एवरी 6 years to elect its president, and the country has never been under military or dictator's rule. 2000 तक कंट्री कभी भी किसी मिलिट्री ग्रुप या रूलर या डिक्टेटर रूल के अंडर में नहीं था, लेकिन 2000 में एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI। अब वहां पर PRI एक पार्टी थी 2000 तक, और जिसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हम केस स्टडी ऑफ मैक्सिको पढ़ रहे हैं। तो वहां पर 2000 तक हमेशा ये पार्टी जीतती थी, और जो अपोजिशन पार्टीज थी वो कॉन्टेस्ट तो करती थी इलेक्शंस में, बट नेवर मैनेज टू विन। मतलब एक ही पार्टी वहां पर क्या कर रही थी, विन करती जा रही थी, दैट वाज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी और PRI। और PRI जो थी अपनी डर्टी ट्रिक्स के लिए, अपने रॉन्ग प्रैक्टिसेस के थ्रू विन इलेक्शंस करने में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहाँ पर उनको पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करना कंपलसरी होता था। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को, पेरेंट्स को फोर्स करना था कि आपको आपके पेरेंट्स को PRI पार्टी को वोट करना है। मीडिया जो था लार्जली इग्नोर करता था किसको, एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन को, यानी अपोजिशंस की एक्टिविटीज को इतना ज़्यादा फ्रंट में लेके नहीं आते थे, ठीक है। एंड एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। और यहाँ तक कि जो पोलिंग बूथ होता था वो भी शिफ्ट कर दिया जाता था लास्ट मिनट में, सो दैट द अदर पार्टी और कैन नॉट गिव वोट्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट PRI जो था वो बहुत ही ज़्यादा मनी स्पेंड करता था फॉर कैंपेन एंड ऑल फॉर इट्स कैंडिडेट्स। तो दीज आर, और कई बार जो थे जब पता है कि अच्छा खासा वोटिंग काउंटिंग हो चुका है तो क्या कर दिया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था कि अदर कैंडिडेट्स कैन नॉट वोट, so the candidates of other party cannot vote. So these are the very wrong practices used. wrong practices use किए गए, मतलब free and fair नहीं है, transparency नहीं है बिल्कुल भी, and the same party is winning again by using many dirty tricks. So we can say the party institutional revolutionary party in the Mexico has not been said as the complete system cannot be said as the democratic system. So 3 case studies we have seen. Now we will see about the third case study that is related to the rule of law and respect for rights. उससे पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि as you all know what is universal adult franchise. Every person, if अगर इंडिया की बात करें तो after achieving the 18 years of age, he she without any discrimination can go and vote. ठीक है, तो one person should have one vote and one vote should have one value. यही होता है हमारे यहाँ पर, एक पर्सन है उसको एक वोट करने का अधिकार है और उसके पास उसको जो वोट है उसकी एक वैल्यू है, ना कि किसी स्पेशल पर्सन है या हाईली रिच पर्सन है तो उसके वोटिंग क्वांटिटीज बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी हमारे कंट्री में नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी इवन टुडे ऑल्सो मेनी कंट्रीज आर देयर where equal voting rights are not given to all the citizens. On various grounds discrimination is done, like if we see the case of सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पर विमेंस के पास में वोटिंग राइट्स नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट द एस्टोनिया, जहाँ पर क्या किया गया है, सिटीजनशिप रूल्स ऐसे हैं कि पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी को बड़ी डिफिकल्टी होती है, किस लिए, फॉर गेटिंग राइट टू वोट। कहाँ पर, एस्टोनेशिया में। एज पर द सिटीजनशिप रूल्स द रशियन माइनॉरिटी, रशिया के जो कम लोग हैं वहाँ पर उनको बड़ी दिक्कत होती है फॉर गेटिंग राइट टू वोट। Now if we talk about फिजी में भी इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह का है कि जो इंडिजिनियस फिजी हैं, जो लोकल फिजी पर्सन्स हैं वहाँ पर, दोज आर हैविंग मोर वैल्यू, उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू एज कम्पेयर टू द इंडियन फिजी पीपल
people living there. Now next case study if we see, that is the rule of law and respect for rights. Now in this we will see the case study of Robert Mugabe and ZANU-PF party. अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें माइनॉरिटी वाला थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि जिम्बाब्वे का केस स्टडी है ये. ओके, so let I write you here जिम्बाब्वे. ठीक है, जिम्बाब्वे का ये केस स्टडी है और इसमें क्या होता है देखिए आप लोग कि जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मेजोरिटी रूल इन 1980. 1980 में क्या करता है जिम्बाब्वे, वाइट जो माइनॉरिटी रूल था उनसे क्या अचीव करते हैं, इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं. और तभी से वहां पर कौन सी पार्टी रूल कर रही है, ZANU-PF पार्टी जो थी वहां पर रूल कर रही है. और उसी ने क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज्यादा आगे लेकर गए थे इंडिपेंडेंस दिलवाने में. और इस पार्टी के जो लीडर थे रॉबर्ट मगबे, वो ही कंट्री को रूल कर रहे थे. कब से, जब से कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था. रेगुलरली इलेक्शंस वहां पर हो रहे थे. एंड ZANU-PF जो प्रेसिडेंट थे वो पॉपुलर थे, बट he was also using unfair practices in elections. देखो जब हमने इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में मैक्सिमम पढ़े तो वो पार्टी पूरा रॉन्ग प्रैक्टिसेस यूज कर रही है. ओके, यहाँ पे लीडर यूज कर रहा है रॉन्ग प्रैक्टिसेस को. और धीरे धीरे द गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. धीरे धीरे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर बना दिया गया कि जिसमें प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई है, दूसरी तरफ उसको लेस अकाउंटेबल भी बनाया जा रहा है. मतलब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोगों को उसको जवाब नहीं देना किसी तरह से भी. कई बार जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको परेशान किया जाता और उनकी मीटिंग्स तक को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता. पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस जो थे गवर्नमेंट के वो इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाते. एंड वहां पर एक ऐसा लॉ बन गया दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट कुछ भी करे उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसके बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोला जाएगा. ऐसा इस तरह से लॉ बना था. टेलीविजन और रेडियो थे वो भी गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे थे. गवर्नमेंट मीन्स रॉबर्ट मगबे का गवर्नमेंट. एंड गिव देम ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. उनको बोला जाता था आप जो भी बोलेंगे मीडिया को, यू विल टेल टू द पब्लिक इन फेवर ऑफ द ZANU-PF पार्टी. और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स जो थे वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहते, दे वर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द पार्टी. एंड जो जर्नलिस्ट अगेंस्ट जाते थे, मतलब ट्रू चीज लोगों के सामने रखना चाहते थे, उन जर्नलिस्ट को पनिश किया जाता था बहुत ज्यादा. तो इस तरीके से जजेस तक को प्रेशराइज किया जाता था कि जजमेंट उनके अकॉर्डिंग कंट्रोल दिया जाए. सो दिस वाज द सिचुएशन देयर. अगर हम आगे बात करें जिम्बाब्वे की, तो अब इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जिम्बाब्वे हमें शो कर रहा है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन गवर्नमेंट बट इट इज नॉट सफिशिएंट. सिर्फ रूलर का अप्रूवल डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल नहीं है. ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी क्या हो सकती है, अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. यहाँ पे रूलर है, इलेक्टेड है, लेकिन जो कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन द डेमोक्रेसी. सो पॉपुलर लीडर्स क्या हो सकते हैं, ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. ठीक है, लोगों के बारे में नहीं सोच सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हो रहा था. तो क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. ऑल शुड बी सीन इक्वली. ठीक है, एंड इन द आइज ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए. सभी के राइट्स, अधिकारों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए. इससे हमें केस स्टडी से ये देखने को मिलता है दैट वाज नॉट इन जिम्बाब्वे. नाउ अगर हम समरी के फॉर्म में बात करें अब कि समरी क्या है, तो सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं कि रूलर्स जो हैं उन्हीं को क्या होना चाहिए, मेजर डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि जैसे कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया. उसके बाद में इलेक्शंस में एक प्रॉपर चॉइस ऑफर होनी चाहिए. एक ही पार्टी है तो सेलेक्ट क्या करेंगे. ठीक है, तो मेनी पार्टी शुड बी देयर, मींस चॉइस शुड बी देयर. एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल फॉर चेंज द करंट रूलर. लोगों के पास ऑप्शन भी होना चाहिए कि वो अगर उनको ठीक नहीं लगता है तो रूलर चेंज कर सके. नेक्स्ट इज किसी पार्टी की किसी तरह की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए. चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द ऑल पीपल इन इक्वल बेसिस, जो कि हमने देखा इन कंट्रीज में इक्वल वोट्स लोगों को नहीं मिल रहे वोटिंग राइट्स. आफ्टर दैट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक
अब गवर्नमेंट जो बनती है चॉइस के अकॉर्डिंग, उसके भी कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिम्बाब्वे में रूलर जो है कुछ भी कर रहा है, रॉबर्ट मगबे, एंड द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग व्हाट ही इज saying and doing. So these things should also not there. There should be respect for the citizens' right, and government should be limited by rules of the constitution. So these are the different case studies we have seen. Now students, in the next part we will see about the demerits and advantages of democracy, and some more meaning, some broader level meaning of democracy we will see in the next part.